Good morning, children. Today's our topic is dependence of reaction rate on concentration. Okay, so the topic is visible to you. Okay, these are the notes. Clear? At the end of the class, I will send these notes to you. Okay, so we will let understand how the rate of reaction is dependent on the concentration. Let us check. Okay, it was scientist Gullberg and Wege who had given law of mass action. Clear? This law we have studied in class 11th. So according to this law, for any reaction, suppose कोई भी reaction हो रही है, जैसे suppose AA plus BB gives product, कोई भी reaction suppose हो रही है, तो इस लॉ के अनुसार the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. Okay, so in case if the concentration of A is expressed as A and B is expressed as B, then rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant raised to their numerical coefficient. So numerical coefficient of A is small a and B is small b. So in case if I raise them, so rate of reaction is equal to proportionality constant K, A to the power A and B to the power B. This is rate of reaction where K is known as velocity constant, A and B are the concentration of reactant A and reactant B, and small a and small b are the stoichiometric coefficient or numerical coefficient of reactant A and reactant B. Very clear? So in case any reaction is given, suppose if I say 2NO2 plus O2 gives 2NO3. So for this reaction, rate of reaction will be proportionality constant K. What is the concentration of NO2? It is expressed in terms of whole bracket to the coefficient how much? 2. So raised to the power 2 and concentration of oxygen. Okay. So rate of any reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant species raised to their numerical coefficient. So NO2 is raised to power 2 and O2 is raised to power 1. Very clear? So this will be the rate equation. Now, however, what happens here when a reaction takes place? Suppose मैंने कहा कि A का A पार्टिकल आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, B का B पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन क्या ऐसा होगा कि कैपिटल A जो है इसके सभी पार्टिकल्स जो A स्मॉल a हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, या जो B है इसके सभी पार्टिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्लियर? मान लो 100 पार्टिकल्स A के लिए तो कोई जरूरी नहीं 100 पार्टिकल्स करें. अगर उसके A के 100 में से सिर्फ 5 पार्टिकल प्रोडक्ट बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट 100 पार्टिकल पे डिपेंड नहीं होगा. रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड होगा? सिर्फ 5 पार्टिकल पे डिपेंड होगा. वेरी क्लियर? तो क्या पाया गया कि हमने जब किसी रिएक्शन का रेट जो निकालते हैं थ्रू द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो कई बार रिएक्शंस जब एक या ज्यादा स्टेप्स में होती है तो उस कंडीशन में रिएक्शन का रेट जो एक्सपेरिमेंटली आता है वो अलग आ जाता है. किससे? आपका नॉर्मल जो हमने मास लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट निकाला है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन में आपको यहां ले लेता हूं. ठीक, मैंने एग्जांपल दिया है. सपोज ये रिएक्शन एक अकर हो रही है. यहां पर एक रिएक्शन है
NO2 plus F2 gives 2NOF। क्या? NO2 plus F2 gives 2NOF। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार इस रिएक्शन का रेट क्या बन जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा K NO2 की पावर 2 और F2 की पावर 1। वेरी क्लियर, F2 की पावर 1। लेकिन होता क्या है कि ये तो थ्योरेटिकल है या लॉ ऑफ मास एक्शन से दिया, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं इस इक्वेशन को तो क्या मिलता है? इस रिएक्शन का जो रेट है वो NO2 की पावर 1 आता है और F2 की पावर 1 आता है, यानी कि NO2 की ट्वाइस पावर पे बेस्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल पावर पे बेस्ड है और फ्लोरीन की सिंगल पावर पे बेस्ड है। कारण इसका क्या है? जब हम रिएक्शन को इंटरमीडिएटली देखेंगे, अंदर से देखेंगे या रिएक्शन के स्टेप्स को गौर करेंगे तो ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। ठीक है, पहले स्टेप्स में NO2 F2 के बाद मिलके NO2F बनाता है और एक फ्लोरीन एटम फ्री मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो फ्लोरीन एटम हमको मिल गया है ये फर्दर दूसरे Na2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और वापस NO2F दे देगा। तो पहला स्टेप इसका स्लो स्टेप है जबकि दूसरा स्टेप इसका फास्ट स्टेप है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, चूंकि रेट किस पे डिपेंड है? स्लो स्टेप पे, ना कि फास्ट स्टेप पे। तो जब रेट इस पे डिपेंड है तो अगर इस स्टेप के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू K NO2 की पावर 1 एंड F2 की पावर 1। तो प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन के लिए रेट निकलता है वो ये निकलता है, जबकि आपका अगर हम थ्योरेटिकली देखेंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन से होना क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था। ठीक है, तो ये अंतर आ गया। तो ये अंतर इसीलिए आता है क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड है? स्लो स्टेप पे, और स्लो स्टेप में सिर्फ यही पार्टिकल्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी के सभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये पार्टिकल्स NO2 का एक पार्टिकल और F2 का एक पार्टिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको दूसरे वे में समझेंगे, ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट निकलता है वो आपका क्या नहीं है, वो हमें कई बार एक्सपेरिमेंटली जो रेट निकलता है उससे डिफरेंट मिलता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज रेट लॉ। ठीक है, तो यहां से हमने जो नॉर्मल वे में हम जो लॉ ऑफ मास एक्शन से रिएक्शन के रेट के लिए जो इक्वेशन लिखते हैं, मान लो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा K A की पावर A और B की पावर B, तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है रेट इक्वेशन। यहाँ K जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट है, A और B जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो कंसंट्रेशन है मोल्स पर लीटर में, या मोलार कंसंट्रेशन है किसका? आपका रिएक्टेंट A का और रिएक्टेंट B का, और स्मॉल a और स्मॉल b आपके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्लियर? सो दिस इज रेट इक्वेशन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेट लॉ। ओके, रेट लॉ। ठीक, मान लो कोई रिएक्शन आपका यही थी AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से, बाय लॉ ऑफ मास एक्शन रेट क्या होना चाहिए था? इसका रेट होना चाहिए था K A टू द पावर A और B टू द पावर B, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो रेट है, ठीक है, वो A के A पार्टिकल्स पे डिपेंड हो और B के B पार्टिकल्स के। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, लेट particles X of A and particles Y of B participate in rate determining step. So in this condition अगर रेट डिटरमाइनिंग या रेट ऑफ द रिएक्शन जिस स्टेप पे डिपेंड है उसमें सिर्फ A के X पार्टिकल और B के Y पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक्चुअल रेट जो होगा वो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन का इज इक्वल टू K A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। तो ये जो है रेट है ये हमें एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली क्या देता है, रिएक्शन का रेट देता है। तो ये जो इक्वेशन है
ये कहलाती है आपकी रेट लॉ। ठीक है, तो रेट इक्वेशन और रेट लॉ में अंतर है। ठीक है, रेट इक्वेशन ये थी आपकी, ठीक है, जहां पर जितने भी हमने कोफिशिएंट थे उन पे रेस कर दिया, बी का बी था तो इसमें बी पे रेस कर दिया, लेकिन ए और बी कोई जरूरी नहीं कि सभी के सभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो कैपिटल ए या रिएक्टेंट ए के सपोज अगर एक्स पार्टिसिपेट करते हैं, कैपिटल बी के वाई पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका रेट हमारा ये बनेगा और ये इक्वेशन कहलाएगी रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ। क्लियर? ठीक, अब यहां से क्या चीज समझ में आती है कि जब मैं इस रिएक्शन को लिख रहा हूं तो ये जो ए के ए और बी के बी मोल्स हैं, ठीक है, टोटल ए के कितने मोल्स हैं, ए हैं, और बी के कितने मोल्स हैं, बी। तो अगर हम इन दोनों को सम कर दें, यानी कि हम क्या कर दें, ए प्लस बी कर दें, तो ये बन जाएगा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। वहीं पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ए के जो मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बी के जो मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उसको अगर हम सम करेंगे, यानी कि हम सम करेंगे x प्लस वाई, तो ये बनाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? सो दिस इज हाउ द मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड। ओके, सो this is your how the rate of the equation or the rate is depending on the concentration of reactant terms. Clear? I think it is well known to you. I am sending this video as well as notes so that you can understand today's topic. Thank you, children.